नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्ध निराकार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाशનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગાથા 102 નો સ્વાધ્યાય શરૂ કર્યો છે। આચાર્ય ભગવાનની આ 102મી ગાથા, એનો અન્વયાર્થ, એનો ભાવાર્થ અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે। શેષ ભાગ આજે આપણે કરીશું। તે પછીથી ગાથા 103 નો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીશું। ગાથા 103 નો સ્વાધ્યાય ગુરુદેવ આજે આપણને કરાવે છે। એમના પ્રવચનમાંથી આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, એટલે આજે 103 ગાથા પહેલા લઈએ। 103મી गाथाना उपोद्घात कहे छे कि आगे जिस आत्मा के जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को तू स्व संवेदन ज्ञान के बल से जान, ऐसा कहते हैं। स्व संवेदन ज्ञान थी आत्मा ने जान એટલે આત્માની અનુભૂતિ કર। જે આત્માને જાણતા સ્વ અને પર બધું જણાય છે તો એનું જ્ઞાન તું સ્વસંવેદન પૂર્વક કર। તો ગાથા 103 आत्मापि परः अपि विज्ञायते येन आत्माना विज्ञातेन तं निजात्मानं जानीहि त्वं योगिन ज्ञानबलेन। 103 गाथाना अन्वयार्थમાં કહે છે कि येन आत्मा विज्ञातेन आत्मा अपि परः अपि, जिस आत्मा को जानने से आप और पर सब पदार्थ विज्ञायते जाने जाते हैं, तम निजात्मानं योगिन त्वम, उस अपने आत्मा को हे योगी तू ज्ञान बले न जानी ही, आत्मज्ञान के बल से जान। सो कैसे कि जिस आत्मा को जानने से आप और पर स्व और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उस अपने आत्मा को हे योगी तू आत्मज्ञान के बल से जान। एना भावार्थ में यहाँ कहे छे कि यहाँ पर यह है कि रागादि विकल्प जाल से रहित सदा आनंद स्वभाव जो निज आत्मा उसके जानने से निज और पर सब जाने जाते हैं, इसलिए हे योगी हे ध्यानी तो उस आत्मा को वितराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न परम आनंद सुख रस के आस्वाद से जान, अर्थात तन्मयी होकर अनुभव कर। स्व संवेदन ज्ञान आप कर अपने के अनुभव करना, स्व संवेदन ज्ञान ही सार है, ऐसा उपदेश श्री योगींद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को दिया। गुजराती में गाथा लीए। गाथा 103 गुजराती में आ प्रमाणे छे। निज तेम सौ पर जाणिए जाने जे निज आत्म, योगीन ज्ञान बळे तू ते जान एक निज आत्म।
જે આત્માને જાણવાથી સ્વ તથા પર પદાર્થો જણાય છે, જે આત્માને જાણવાથી સ્વ તથા પર પદાર્થો જણાય છે, તે પોતાના આત્માને હે યોગી તું આત્મજ્ઞાનના બળ વડે જાણ. વિતરાગ સદા એક આનંદ સ્વરૂપ આત્માને જાણવાથી બીજા પદાર્થો પણ જણાય છે. આત્માને જાણતા સર્વ જણાય છે. સ્વ અને પર પ્રકાશક આત્માનું છે સ્વરૂપ, એટલે કે જ્ઞાનનો એ સ્વભાવ છે. સ્વ પર પ્રકાશક જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે અને જ્ઞાન દ્વારા એ આત્માને જાણે છે, એટલે એને સ્વ અને પરનું જ્ઞાન થાય છે. તો હવે કહે છે કે કેવી રીતે જાણ? તો આત્માને તું સ્વસંવેદન સહિત જાણ. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં શુદ્ધ આત્મામાં લીન થઈ અને એને જાણે. એમ કે છે કે વિતરાગ સદા એક આનંદ સ્વરૂપ આત્માને જાણવાથી બીજા પદાર્થો પણ જણાય છે. માટે હે યોગી, રાગ દ્વેષ આદિ વિકલ્પોનો ત્યાગ કરી એક શુદ્ધ આત્મામાં લીન થવાનો પુરુષાર્થ કરવો. અને એમ કરતા આત્મામાં એકાગ્રતા લીનતા થતા એને એનું જ્ઞાન થાય છે. એ સ્વસંવેદન જ્ઞાન, એને સંવેદનમાં આનંદનો અનુભવ થાય છે. એટલે કે છે કે આ જગતમાં એક સ્વસંવેદન પોતાના જ્ઞાન વડે પોતાના શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ જ્ઞાન જ સાર છે. એવું સ્વસંવેદન જ્ઞાન છે, એ જ સાર છે, બીજું કાંઈ સારભૂત નથી. આત્માની અનુભૂતિ સ્વસંવેદન, એના સિવાય જગતમાં બીજું કાંઈ સારભૂત નથી. આખો પુરુષાર્થ પહેલેથી છેલ્લે સુધી સ્વસંવેદન જ્ઞાન સહિત જ હોય છે. આત્માની અનુભૂતિ પૂર્વક જ આખો પુરુષાર્થ છે. ચોથા ગુણસ્થાનની દશામાં આવે છે, એટલે પહેલી વાર સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે છે, ચોથું ગુણસ્થાન હોય છે, તો ત્યારે એને સ્વસંવેદન જ્ઞાન કર્યું છે, એને સંવેદ્યું છે. અનંત ગુણોનું ભવન અંદરમાં ચાલી રહ્યું એને એને અનુભવ્યું છે. એને આનંદ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. અને પછી પણ આખો પુરુષાર્થ અંતરંગ જ છે. વારંવાર પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતા કરે છે, તો એ વખતે એને સ્વસંવેદન જ્ઞાન હોય છે. અને પછી સ્થિરતા કરી લે છે, એટલે સ્વસંવેદન જ્ઞાન સિવાય બીજું કાંઈ હોતું જ નથી. નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કહો, સ્વસંવેદન જ્ઞાન કહો, સ્વાનુભૂતિ કહો, બધાનો અર્થ એક જ છે. તો આ 103 ગાથા છે એ બહુ મહત્વની છે. આત્માની અનુભૂતિ કરવાની વાત ચોખ્ખી કરી છે. ક્યાંય બીજી વાત કરી નથી કે આમ ચિંતન કરો અને તેમ ચિંતન કરો, એવી પણ કોઈ વાત નહીં. સીધી વાત સ્પષ્ટ કરી છે. સ્વનો અનુભવ થાય, સંવેદવામાં આવે. કોણ સંવેદાય છે? પોતાનો આત્મા. કેમ સંવેદાય? કેમ કે આત્મા આનંદ ગુણનો પિંડ છે, અને ગુણ છે તો એનું ભવન હોય, એનું પરિણમન હોય, એટલે એનો અનુભવ થાય જ. એટલે એવું સંવેદન, એવા સંવેદનની વાત કરી છે અહીંયા. તો આપણે 102 ગાથા કરી રહ્યા છીએ, એનું સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ અને પછી પૂજ્ય ગુરુદેવ કાજી સ્વામીએ એના ભાવાર્થથી આગળ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈશું. 102 ગાથાની અંદર ઉદાહરણ દ્વારા એ સમજાવવામાં આવ્યું કે નિર્મળ જળની અંદર તારાઓનું પ્રતિબિંબ પડે છે. નિર્મળ જળ છે તો એ જળમાં એ પ્રતિબિંબ દેખાય છે. એટલે કે જેમ તારાઓના સમુદાય નિર્મળ જળમાં પ્રતિબિંબિત થઈને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેમ નિર્મળ આત્મામાં સમસ્ત લોકાલોક પ્રતિબિંબિત થાય છે. નિર્મળ આત્મામાં જ્યારે જ્ઞાન નિર્મળ છે ત્યારે, એટલે કે એ વિકલ્પ રૂપ થતું નથી, ત્યારે એ શુભાશુભ ભાવરૂપ જ્ઞાન પ્રવર્તું નથી, અને સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરી અને જ્યારે એ જ્ઞાન નિર્મળ પરિણમે છે ત્યારે સમસ્ત લોકાલોક પ્રતિબિંબિત થાય છે. એ 102મી ગાથાની અંદર વાત આવી. તો એનો આગળ સ્વાધ્યાય લઈએ ભાવાર્થથી શરૂ કરીને
પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3 એના પાના નંબર 264. કેટલામી ગાથા છે? 100 भावा है ठीक। 102 इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था वह यहाँ पर जानना। सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। ये तो राग होता है दयादान व्रत भक्ति का, उसका भी ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। उसको आत्मा कहिए। ये राग क्रियाकांड का राग है, मेरा है और मैं करता हूँ, ये तो आत्मा नहीं, ये तो अनात्मा मिथ्या दृष्टि है। धन्यवाद बापू, जगत थी जूनी बात है भाई, શું કરે? भगवान पुकार तो अनादिकाल से चला आया है, पर उसने सुना ही नहीं। अपनी दृष्टि से रखा कर बात सच क्या है सुनी नहीं। यहाँ कहते कि सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। वही उपाधि है? राग विकल्प से जो दयादान परत आदि का विकल्प से भिन्न ऐसा ज्ञाता दृष्टा भगवान, वो आत्मा को सम्यक दृष्टि को उपाधि है। समझो उपाधि नाम आदरणीय करने लाग, ग्रहण करने लगी है। बाकी व्रत तप का विकल्प है, वो भी आश्रय है, ये आदरणीय नहीं। समझ में आया भाई? मार्ग तो अतीन्द्रिय आनंद का कर्ण प्रभु ये बायनी चीज से आकर्षित, सुंदरता में आकर्षित हो जाता है, उसका आत्मा का आनंद का घात होता है। भगवान अतीन्द्रिय आनंद प्रभु अपना आनंद का अर्पणता छोड़कर बाह्य के अनुकूल चीज, सुंदर आकर्षण वाली वो तरफ में उत्सित वीर्य होकर सुंदरता में जड़ जाते हैं अंदर पर में। तो आत्मा का आनंद का अनादर होता है। समझ में आया? सुंदर नाथ तो प्रति आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सुंदर स्वरूप प्रभु आत्मा है। इसकी सुंदरता की अनुभव दृष्टि छोड़कर बाह्य पदार्थ की सुंदरता में लोभाई जाते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। એવું કીધું બાપુ? કોના નામ? દાગીના. એ મુલજીભાઈ, એ તમારા ઓલા ગયા હતા ને તમારા છોકરાના શું કહેવાય એની ઘડિયાળનું કારખાનું છે ને મુંબઈ, મરુદભાઈ દીકરા 5 કરોડ રૂપિયા છે. શું કહેવાય એનું નામ? પૂનમચંદ, ભૂલી જાય ભાઈ નામ. મુંબઈમાં છે ને, એક વાર લઈ ગયા હતા ઘડિયાળના કારખાના में, મારાના પગલા થાય। बंगला भरा 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ इसका लड़का है। दूसरा नंबर का, पहला नंबर का है सिविल लाइन में है, उसके पास 4 करोड़ है। मलुकचंद भाई का 2 लड़का, अपन उसके एना बाप ने कहीं नहीं हो पैसा हक बके उसके नहीं। मलुकचंद भाई थोड़ा 5-25 हजार ये तो लड़का कमाया है, जुदा कर दिया, पीछे कमाया तो उसका हक नहीं, उसका पिताजी का। अरे हक यहाँ लड़का हक उसका है। आई तो कहते हैं लोग को बाहर में ललचा जाए। ત્યાં ગઈ थी एक बार, ये बात करी थी कहीं, घड़ियालों पे, तो घड़ियालों पर सोना का लिप देते हैं, सोना है। कहते आपने तो देखा न्याय कितना 100 तोला कितना, एक दिवस में इतना घड़ियालों को सोना का लिप देते हैं।
है 1 किलो बचे सोना, इसका कारखाना है ना, उसका लड़का था नहीं, कौन से ये साओ से मामा दिख रहे, उसका मामा का लड़का है, ये काम करता है, मां का मोटो कारखाना है, પણ આ સોનું બેચે એનો મામા નથી સોના ઘડિયા ઉપર 1 કિલો, એક દિવસમાં 1 કિલો ધૂળમાં એની महान ना खाता है सब समझ में आया, हारे हारे आवे दिखाने को और बस इतना हा 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 मोटा 20,000 न पगार तो मानुस नौकर हुए जाते ही तो आ भाई का लड़का भाई ना कुंवट भाई ना आपको भाई मलूकन भाई ना लड़के ने बड़ा लड़का पास 4 करोड़ है, सिजलाइन है, दीकरी के नहीं है, हज छोड़ते नहीं ममता, छोटा लड़का दूसरा पास 5 करोड़ है, 2 लड़का पास 9 करोड़ है, दूसरा 2 है, उसके पास 5-15 लाख है, तो भेगा रे छोटा भेगा दूर में नहीं कहे हा हा हा, तो वो तू क्या लज्जा में गया तेरी लक्ष्मी अंदर अनंत ज्ञान अनंत आनंद पड़ी है, जिसके विकल्प से पार है, राग से पार है, बड़ा निधान है तेरी पास, ये निधान की तो कीमत नहीं, बाहर ना धोड़नी कीमत एक कैसे अर्पाई गया है परमा, अपनी स्वरूप की दृष्टि छूट गई है इसको, हाँ 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 समझ में आया। कहा था ત્યાં फिर मुंबई हाथ पानी गई एक है ना अपना रसिक भाई ना बनी हुई राजकोट वाला कि आर्क पानी करवा गई हाथ को पैसा 5 करोड़ ते पगला કર્યા બધે ત્યાં 1 લાખ મખમલ सारा मकान पाछળ मखमल सारा 5 लाख की तो ही फिर न फर्नीचर के तुम्हारू उकरड़ा 5 करोड़ हाँ यार करने भोजन करने आमंत्रण किया था गए थे पगला सबके कहीं धूल में कीधु उसमें निकलना कठिन पड़ेगा, साहिबी में से निकलना महा मुश्किल पड़ेगा, भगवान तो उसी साहिबी से भिन्न है और अंदर दया दाना विकल्प से भी भगवान तो भिन्न है अंदर मुर्चन भाई, हाँ हाँ पण आ बधा छोकराओ अमेरिका जाए છે ને 5-2 15 કરે પંદર ઓહો હવે ત્યાં તો ભંગીને 2,000 મળશે માસી, અમેરિકા में तो ભંગીને 10,000 मिलते मासी વાણિયા ને દીકરા જાય એને અમારે 10,000 નો પગાર મળી હવે 10,000 હું ધૂળ માં 2,000 નું कितना बचे और हम भंगी मोटर में आवे ने 10,000 पगार मासी अमेरिका में ये सुना है भाई तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, तुम्हें गया छो कि नहीं कोई हम तो सुना है भंगी 10,000 का पगार मासी आई हमारा लड़का गया ने 8,000 पगार है 10,000 धूल में हूँ गई बता सुमन भाई, हाँ भगवान तेरी पासे अंतर आनंद का निधान पर आया, इंद्रिय आनंद सुख का पिंड प्रभु है, उसकी दृष्टि में सारी दुनिया तृणातुल है, इंद्र का इंद्रासन भी सड़ा हुआ तृणा समान है, इंद्र का इंद्राणियों करोड़ों का भोग सड़ा हुआ कुत्ता ने मिंद जैसा सड़ा हुआ है, अपना आनंद की दृष्टि की अपेक्षा से ऐसा संकित कहने उसको संकित कहने में आता है, पूर्णानंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा मैं हूँ, ऐसी अंतर्मुख होकर निर्विकल्प नाम राग का भाव छोड़कर वितरागी पर्याय से अनुभव होना, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहने में आता है। बाकी शास्त्र ज्ञान है, लाख ज्ञान बता, ये ज्ञान नहीं अज्ञान है, समझ में आया? हाँ ये आई कहते देखो सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा ये उपाधि है, यह सूत्र भी पहले कथनी को दृढ़ करने वाला है,
4 બોલાયા હતા ને, હવે 102, 103 आगे। હવે जिस आत्मा के जानने से भगवान कौन है बापू तने खबर नहीं भाई। ये चैतन्य प्रकाश का नूर सूर्य है, उसमें विकल्प राग दया दान व्रत भक्ति का विकल्प भी उसमें है नहीं, ये तो भिन्न चीज है। समझ में आया है कि आत्मा के जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं। जिसको आत्मज्ञान हुआ उसको ये राग क्या है उसका ज्ञान यथार्थ होता है। समझ में आया? राग आता है ज्ञानी को भी, दया दान व्रत भक्ति राग है, तो उसका यह ज्ञान यथार्थ किसको होता है कि जिसको आत्मा का ज्ञान आनंद का हो उसका यथार्थ ज्ञान उसका होता है। मैं आनंद स्वरूप हूँ और विकल्प उठते हैं ये दुख रूप है, चाहे तो शुभ विकल्प हो। समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति पूजा शुभ राग भी दुख रूप है क्या है? नहीं खबर है की चीज नहीं है। समझ में आया? ये अपने को जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को क्या कहते हैं? देखो तू स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान, शास्त्र से नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु उसका स्वनाम अपने से ज्ञान की पर्याय से वेदन करके जान। ये शुभ विकल्प से भी जानने में आता नहीं। समझ में आया? क्या शुभ पीड़ा है? देखो ऐसे आत्मा को तुम स्व संवेदन ज्ञान के बल से, राग ने विकल्प ने व्यवहार से बल से नहीं। बहु बात अनंत काल में उसने सुनी नहीं અને जची नहीं, सुनी है तो जची नहीं। समझ में आया? अपनी क्या कीमत है उसकी खबर नहीं। निर्विकल्प आनंद का खंड प्रभु आत्मा, परमात्मा शक्ति का पिंड आत्मा, उसमें से परमात्मा की पर्याय केवल ज्ञान की उत्पन्न होती है। ये परमात्मा की पर्याय का कारण परमात्मा अपना आत्मा है, उसका कारण व्यवहार विकल्प भी उसका कारण नहीं। अरे बात कठिन भाई, ये अनंत काल है परिभ्रमण करते करते घुमा दिया इन्हें। समझ में आया? अरे एक जवान मानसा ने भी नहीं कहे ख्याल रहा बाबा केदा क्या गाम अबाना जवान था वो, यहाँ सुना 2-4 दिन। पहले तो प्रश्न करते थे, करते 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 जहाँ 2-4 दिन सुना। आई 35 वर्ष का था, 40 वर्ष के अंदर रोवे रोए रोए, महाराज हमें तो अभी तक सारी जिंदगी नकामी गई। हम तो बाहर की क्रियाकांड में धर्म मानते थे, आप उनकी दया पारी व्रत किया ना, अरे जिंदगी व्यर्थ गई, अवस्था हो गई। समझ में आया? चीज सुनने में नहीं मिले तो सुने पीछे उसका अनुभव करना ही तो अलौकिक बात है। भूषण भाई न्याय है अमेरिका में ગયા હતા, ત્યાં રોકાણા હતા ને, છોકરો છે તે એમાં ધૂળે નથી, બધા મજૂર છે ત્યાં અમેરિકામાં। હું છે ને અબજોપતિ બિચારા દુઃખી છે ત્યાં, અધ્યાત્મને અમે શોધે છે। હવે જ્યાં અધ્યાત્મનું આ કાઢ્યું નથી, શ્રી કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે, એટલે બાવા થાય છે, કપડા પહેરે છે ને, મુંબઈમાં જોયા ને, હે हरे कृष्ण हरे कृष्ण हूँ आयु, हरे कौन है कृष्ण कौन है उसकी तो खबर नहीं। मुंबई में बहुत आया है अमेरिका से बाबा, नहीं भाई देखा है, जबा फिरते हैं ना वो लाल, हम देखा है ना, हम तो मुंबई में तो बहुत देखते हैं। हरे हरे कृष्ण कौन हरे कृष्ण बाबा, ये राग ने द्वेष ने अज्ञान को हरे हरि भगवान आत्मा है, અને કૃષ્ણ કર્મ કરશે સો કૃષ્ણ,
अज्ञान ने राग ने कृषि नाखे खेड़ी नाखे, ऐसा भगवान ये आत्मा कृष्ण है। समझ में आया? ये भक्ति कर बो हमारा मुझे है ना पैसा थी कि शांति मिली नहीं। अब्दुलपति माना बड़ा बड़ा मकान भूल में है नहीं। समझ में आया? अहिया कहते अपने स्वसंवेदन यहाँ के बल से जान पाठ है ना, नानंग बले न जो 103 है, चौथा पछिला है, नान बले न ज्ञान स्वरूप अंदर भगवान है, ज्ञान का वेदन के बल से मुझको जान। अरे जी क्या कहते हैं समझ में कठिन पड़े। जिस आत्मा को जानने से देखो आप और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं। अपना भगवान ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी जानना हुआ तो उसको राग आदि विकल्प व्रत आदि भक्ति का उठते हैं तो दुख रूप ऐसा ज्ञान उसको यथार्थ होता। समझ में आया? तो सुजानमल जी घूंटन है। प्रथम पढ़ने से पढ़ते कर जाते हैं ना पढ़ने को तो उसके हाथ पकड़ के मास्टर एकड़ा घूंटावे आवड़े नहीं बालक को एक 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 तुम हाथ यहाँ से एकड़ा घूंटाता है एकड़ा भी ना मींडा ये सब धूड़ है। एकड़ा भी जो मींडा लगा जाए तो 9 વધાર देते हैं। ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान अपना शास्त्र का ज्ञान भी नहीं तो अनंत पेड़ किया उसने 11 का ज्ञान किया 9 परु का ज्ञान किया लब्धि उसमें क्या है तो अज्ञान है। जिसमें अज्ञान का ज्ञान न हो ज्ञान शब्द आत्मा भगवान ज्ञान स्वरूपी ज्ञान अंतर्मुख न हो सबका सब शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान कहने में आता है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं आप और पर सब पदार्थ जाने जाते सब जाने जाते हैं हम कहते हैं। ये तो पहले कहा था आपने कलष्टिका में कि तर्क शाक है ना व्यंजन अने नमक नमक खारा है व्यंजन खारा नहीं। उसका यथार्थ ज्ञान किसको होते हैं कि जिसको स्वरूप ज्ञानानंद का ग्रहण है आनंद खंड में हूँ ऐसा ज्ञान है उसको उसका ज्ञान होता है। उसमें आया है कलष्टिका में बताया ना कलष्टिका में आया। पानी ठंडा है और गर्म उष्ण है अग्नि ऐसा शीतपना का अने उष्णपना का भेद निज स्वरूप ग्राही ज्ञान से प्रकट जानने में आता है। आचार्य देखो गजब किया था कि ठंडा है ना ऊना है उसका भी ज्ञान जिसको आत्मा ज्ञान स्वरूप का अनुभव है स्वरूप का ज्ञान हुआ है उसको उसका यथार्थ ज्ञान पर का होता है। समझ में आया? 2 ठिकान दिया है। व्यंजन और खारा लवण का स्वाद उससे व्यंजन खारा जनाता है छुट्टू निज स्वरूप का जानपना द्वारा प्रकट होता है। भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु जिसके अनुभव में आया तो अपना ज्ञान हुआ ज्ञान स्वरूपी मैं तो ज्ञाता दृष्टा त्रिकाल ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञान अंतर्मुख होकर हुआ उसको ही खट्टा है या मीठा है या व्यंजन मोड़ा है। मोड़ा क्या कहते हैं? मोड़ा है फीका बस हिंदी शब्द नहीं आती फिर और શું કહેવાય સમજાય नमक खरा खरा है। नमक खरा ये पण ज्ञान पर का पण यथार्थ इसको होता है कि जिसको स्वरूप ज्ञानानंद का भान हो उसका यथार्थ ज्ञान होता है पर का। समझ में आया?
कलश टीका राजमल बहुत, उसमें समय नाट्य बनाया है, बनारसी दास उसमें से बनाया है, कलश में से। यहाँ कहते हैं जब आत्मा को जानने से आप और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं। जब अपना आनंद का ज्ञान हुआ तो राग आदि विकल्प है, आश्रव है, दयादान का भाव पुण्य है, ऐसा ज्ञान ज्ञानी को यथार्थ होता है। समझ में आया? उस अपने आत्मा को हे योगी तू जो आया ज्ञान बड़े नो, ज्ञान बड़े नो, आत्मज्ञान के बल से जान, शास्त्र ज्ञान से नहीं, पर से नहीं, गुरु से नहीं, देव से नहीं। समझ में आया? जे दिव्य ध्वनि द्वारा अपन आत्मा जानने में आता नहीं, गुरु की वाणी से भी आत्मा जानने में आता। आ गया पहले उसमें तेवी गाथा, तेवी ने उसमें तेवी गाथा में आ गया, परमात्मा प्रकाश त्रेवी गाथा 2 और 3। आगे में जो वितराग की वाणी, वेद शास्त्र भगवान का, दिव्यध्वनि से भी आत्मा जानने में नहीं आता। तो पहले कहिया कि है 5 तेवी से न, तेवी में क्या वेद केवड़ी की दिव्यध्वनि महामुनियों के वचनों और इंद्रियों और मन से भी शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। त्रिवी गाथा है यहाँ तो अपने 103 चलती है। वेद शास्त्र, वेद अनुमति न वेद नहीं हो, वितरागनी वाणी को वेद कहते हैं। दिव्य ध्वनि त्रणलोकना नाथनी અને शास्त्र मुनियों के बनाया, शास्त्र दिगंबर संतों है, उससे भी आत्मा जानने में नहीं आता, और इंद्रिय ने मन से जानने में नहीं आता। ये तो अपना स्व संवेदन ज्ञान से जानने में आता है ना? ज्ञान बोले ना, तू आत्मज्ञान के बल से जान। हाँ, गजब बात करते हैं। अंतर्मुख दृष्टि करके आत्मज्ञान बल से तू आत्मा को जान। ये व्यवहार का विकल्प से भी जानने में नहीं आता, देव गुरु शास्त्र भी आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि परद्रव है। समझ में आया? और परद्रव की श्रद्धा राग है, उसे भी जानने में नहीं आता। देव गुरु ने शास्त्र सच्चा है, रणलोकनाथ केवड़ी, गुरु निग्रंथ मुनि संत आत्मा का आनंद का अनुभवी, उसको मानना वो भी राग है। विकल्प है, परद्रव है, वो तरफ का मानता ही राग है। ये राग से भी जानने में आता। આવી વાત ભારી પ્રભુ શું કરે, ભગવાનનો ધ્વનિ તો આ હે। મહાવીર પરમાત્મા વિરાજते हैं, ત્યાં ભગવાન પાસે તો ગઈ थी कुमकुंडाचार, 8 दिन रही थी। समझ में आया? ત્યાં भी दिल्ली में कपूर कल्पित है, ऐसी बात आया है। आया छापा में। विद्यानंद जी कहते हैं कि महावीर में कुमकुंडाचार गए, ये बात सब कपूर कल्पित है। अरे भगवान, अरे प्रभु शू करे। समझ में आया? 85 का जवाब आया, सदी आया। गिट्टी से है ना दिल्ली, उन्हें पुस्तक छपते, पत्र छपते नहीं है। विकास के ना, हाँ ये प्रकाश, उसे वो पत्र छपते हैं ना, सन्मत संदेश, उसमें जवाब आया। शास्त्र आधार शास्त्र में है, 85 का 21 संस्कृत टीका में है, जयसन आचार
कि भगवान कुंकुंदाचार्य प्रभु पास गए थे, ત્યાં કરાએ બનાયા શિવ કુમાર માટે બનાયા ऐसा पाठ है। देवसेनाचार्य तो कहते हैं, पर ये तो हजी वांचू न हो ने। देवसेनाचार्य एक दर्शन सार है पुस्तक, हम तो सब दिखा, हजारों शास्त्रों दिखा सब। उसमें पाठ है कि हे भगवान दर्शन देवसेनाचार्य दिगंबर संत अनुभवी आनंद का स्वादी ये कहते हैं, हे प्रभु कुंकुंदाचार्य आप जो महाविद्य में न गई हत અને ન્યાસે આ વાત ન લાયા હત તો हम धर्म कैसे पामे थे। आपने नाख्યું है उसमें समयसार में प्रथम गाथा नहीं उसमें। हाँ 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 दर्शन देवसेनाचार्य ये आत्मज्ञानी अनुभवी आनंद का झूलने वाला भावलिंगी साधु होता आचार्य, वो कहते हैं है नहीं यदि पव नदी ना हो सिमंदर स्वामी दिव नारायणम न विबोही तो समणा कहीं सुमुखम पयाणती। देवसेनाचार्य अपने दर्शन सार नाम ग्रंथ में कहते हैं, विदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर भगवान श्रीमंदर स्वामी प्राप्त किए हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी आचार्य, पद्मन नाम है ना, कुंकुंदाचार्य पद्म नाम है, 5 नाम है, पद्मनंदी ऐसा नाम। श्री कुंकुंदाचार्य देव ने बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते हैं। आचार्य कहते हैं देवसेनाचार्य दर्शन सार पुस्तक में। आचार्य वाक्य कपूर कल्पित महाराज। हाँ कहते हैं वो नहीं, इन्हें खबर नहीं कपूर कल्पित है। महाविद्य में गई थी, छापा माया था वेदांत जी ત્યાં है ना दिल्ली। महाविद्य में गई थे, श्रीमंद भगवान का दर्शन किया, आया ने शास्त्र में सब कपूर कल्पित। अरे भगवान आ तो साक्षात परमात्मा पासे गई थी, 8 दिन ત્યાં रही थी। आज शास्त्र को शुद्ध केवड़ियों पास चर्चा किया, भगवान की वाणी तो सुने, वाणी पास चर्चा तो न होते भगवान साहब, तो केवड़ी है तो वाणी निकले तब सुने, और ये सुनकर 8 दिन की शुद्ध केवड़ियों संतों पास चर्चा किया, पीछे आए आकार रस बनाए। समझ में आया। मुनिजन सच्चे मार्ग कैसे पाता। दूसरा एक उल्लेख देखिए जिसमें कुंकुंदाचार्य देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहा। 6 पाउर की संस्कृति का पूरी होते हैं, आखिर में आ शब्द पढ़ा है अस्पताल में, सब है शास्त्र। कलिकाल सर्वज्ञ कहा है, पद्मनंदी कुंका वक्रगिरी ऐसा 5 नाम। विराजित 4 अंगल ऊपर आकाश के गमन करने को जिनकी रुद्धि थी, पूर्व विदेह में हक जाकर सिमंदर भगवान का वंदन किया था, कि जिनके पास के लिए हुए शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भवजीवों को प्रतिबोध किया है, ऐसा जिन चंद्र सूर्य भटार के पट के आभरण रूप कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य देव उनके द्वारा रचित अश्वत्थ प्राप्त है। अश्वत्थ प्राप्त है ना, 8 पर्वत है प्राप्त है नहीं है, वो है नियमसा, वो 6 प्राप्त 8 प्राप्त है, उसमें 85 है, वो प्रवचन सार है। कुंकुंदाचार्य तो 3 नंबर आया ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदारियो जैन धर्मो। 3 नंबर आया, पहले नंबर है भगवान, बीजे नंबर है गौतम, 3 नंबर है कुंकुंदाचार्य जैन धर्मो मंगलम। उसकी वाणी आप परमात्मा प्रकाश में कुंकुंदाचार्य की छाप बहुत बड़ी है, पहला लिखे। कुंकुंदाचार्य का तो अनुसरण घना आचार्यों किया है। साक्षात भगवान कुंकुंदाचार्य आनंद का नाथ, जिसका अनुभव में हमारा एम कहते हैं, हमारा अनुभव का वैभव में आनंद की मोर छाप है। 5वीं का समय सा हमारा जो अनुभव आनंद का है, मोक्ष का मार्ग हमारी पास है, उसका मोर छाप पुष्मान नहीं करते, पुष्प मारते थे ना, ऐसे हमारा अनुभव की मोर छाप क्या है,
आनंद है अतीन्द्रिय। आनंद मुद्रा हमारी छाप है हमारी पास। हमें ऐसा दुख से वाला है, विकट वाला ऐसा है नहीं। समझ में आया? ये पांचवी का समझ, पांचवी का है ना समझ। कहते हैं कि हमारा अंतर वैभव क्या है, तो वैभव से हमारा शास्त्र कहेगा कि निरंतर झरता, जेम समुद्र पर्वत में से पानी झरे, ऐसा हमारा आत्मा निरंतर आनंद से झरता है अंदर से। ये हमारा मुनिपना है, ये हमारा वैभव है। कुंज महावरत ने विक्रम नग्न, ये कहीं हमारा मुनिपना नहीं है। निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद है। सुंदर आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, जिसमें इंद्रों का भी आनंद जहर जैसा है। अतीन्द्रिय आनंद प्रभु विकल्प राग से, व्यवहार से रहित अंदर हमारा मोर छाप आनंद है। उसकी मुद्रा से युक्त, संस्कृत है मुद्रा, मोर छाप है हमारी। समझ में आया? ये क्या चलते हैं ना, मोर मारते हैं ना, एम हमारा वैभव मोर छाप आनंद की है हमारे पास। मुनिपना प्रचुर मुद्रा से प्रचुर संवेदन स्वरूप। यूं क्यों क्या कि चौथे संकीर्त में भी आनंद तो आता है थोड़ा, અને मुनि को तो प्रचुर संवेदन होता है। માટે प्रचुर स्वरूप आप जाए। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान होता है, आत्मा अनुभवी, उसको भी आनंद का स्वाद तो थोड़ा आता ही है। टीवी ना सम्यक दर्शन हो ही नहीं, पर आ तो कहते हम तो मुनि है, तो प्रचुर संवेदन स्वरूप हमारे तो आनंद की उग्रता का वेदन अंदर बढ़ते हैं। अरे वाणी तो देखो। અને સ્વસંવેદન से जो સ્વસંવેદન આપણે સ્વ आया ना, यहाँ स्वसंवेदन आया ना आगा है। ये निर्स्व संवेदन से है हमारा वैभव का जन्म हुआ है। हमारा वैभव है। आनंद की दशा ने शांति ने वितरागता जो प्रकट हुई, ये हमारा वैभव है। ढूंढना वैभव नहीं। अरे राग व्यवहार रत्न तरीका विकल्प ये पण हमारा वैभव नहीं है। वैभव તમારા 2 કરોડ બધા ચાલુ ખડકાય છોકરા તો બંગલામાં આન ફલાણા ઢીકણા ઢીક શું કહેવાય ઘર વખરો। અહીંયા તો આચાર महाराज भगवान कुंदाचार दिगंबर संत, हमारा संतपना मुनिपना कैसा है कि हमारा अतीन्द्रिय आनंद की मोर छाप में हमारा निज वैभव प्रकट हुआ है। ये वैभव से हम आचार्य सुमिसार कहेंगे। पृथ्वी मात्र से भगवान कहते हैं ऐसा व्यवहार विकल्प है, मैं कहता हूँ ऐसा है नहीं। बड़ी गाथा समय सार तो गजब बात है। यहाँ वो आया देखो है ये राग आदि आत्मज्ञान के बहुत से जान। अब उसकी व्याख्या हुई आत्मा नो ज्ञान, आत्मज्ञान हो, राग का ज्ञान नहीं, पर का नहीं, शास्त्र का नहीं। अर्थ समाप्ति यहाँ पर यह है कि राग आदि विकल्प जाल से रहित। ये व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ना विके तो विकल्प नी जाल है, राग नहीं है। ये विकल्प जाल से रहित सदा आनंद स्वभाव। मेरा तो सदा आनंद अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है। मैं तो अतीन्द्रिय सुख का सागर हूँ। समझ में आया? पैसा ने बाईडी छोकरा तो तुम्हारे दुख में निमित्त है। निमित्त हो, दुख नहीं। दुख तो करते हुए ममता ही दुख है। ममता में तो निमित्त है सब। ये हसमुख ने बता गंबा बेनी बता दुख ने निमित्त है। वस्तु
कैसे? निमित्त है, दुख नहीं। दुख तो अपने पूते करते हैं अज्ञान भाव से, विकार भाव करते हैं ना, ये दुख है। ये दुख में वो चीज निमित्त है बस। हाँ हाँ हाँ, भगवान तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये क्या है खबर नहीं उसको। खुद दशरथ जी है सदा आनंद स्वभाव। जो निज आत्मा, भाषा तो देखो, ओ परमात्मा प्रकाश સમય સારની છાપ પડી અંદર, આત્માની છાપ પડી। विकल्प राग नाम पुण्य पाप का विकल्प ने मृत्यु है, ये विकल्प जाल है, उससे रहित मेरी चीज अंदर। ये सदा आनंद स्वभाव है। मैं तो निज आत्मा उसके जानने से निज स्वरूप निर्धान आनंद कंद का जानने से, अंतर्मुख स्व सन्मुख होकर उसका जानने से निज और पर सब जाने जाते हैं। तब यथार्थ ज्ञान अपनान पर का यथार्थ ज्ञान होता है। वो दरबार આવી વાત ક્યાંય નથી હો, ગીતા પીતા માં નથી ને કે એ લોકોમાં તો ગીતા માનશે જગત ને આ વાત નથી બાપુ। શું કહીએ, એ તો બધી વાંચ્યું છે ને, મને તો સબ ખબર હે। ગીતા એ વાંચ્યું, બધા વાંચો, હજારો શાસ્ત્ર ચેતામાં વાંચો દિગમાં। चीज भगवान तो क्या है कि विकल्प जितना दया दान व्रता सब व्रत है, ये तो व्यवहार व्रत तो सब आश्रम राग है। ये धर्म नहीं है, धर्म का कारण भी नहीं है। अरे भगवान बहु कठिन पड़े, प्रभु शू करे, मार्ग पा है। निज और पर सब जाने जाते हैं। इसमें ये योगी, ये गुरु है ना योगेंद्र देव, उसका शिष्य प्रभाकर पटता, उसने प्रश्न किया था, उसको उद्देश्य ने कहते हैं प्रभाकर को। ये योगी, योगी એટલે ज्ञान स्वरूप में जो अपनी परिणति को जोड़ दिया, ये योगी। अनुमति ना बाबा बाबा योगी, यही बात नहीं है। नहीं तो सर्वज्ञ परमेश्वर है, जो आत्मा दिखा ना आत्मा है, ये पूर्णानंद का नाथ आत्मा है, उसमें अपनी निर्मल परिणति, वितरागी परिणति को जोड़ दिया, ये योगी। बाकी बदा ढोंगी। तो संतो ये जगत ने न्याय के नहीं स्पष्ट बात करके कहीं इन्हें समाज नहीं पड़ी नहीं क्या मेरी बात समाज में जिलाशे की नहीं, समाज समतोल रेशे की नहीं, ऐसी कोई पड़ी नहीं। सच है भगवान। सत्य का रहस्य उद्घाटन करने में समाज समतोल रेशे की नहीं, इतनी बड़ी बात हम कहते हैं। आत्मा आत्मा से जानने में आता है, पर से नहीं, राग से नहीं। तो समतोल समाज मानसिक नहीं, समाज समाज के गिरे नहीं। तो सेठ हे योगी, हे ज्ञानी, ये બે શબ્દ पढ़ा है। अंतर ध्यानी आनंद का स्वरूप में ध्यान लगाया, ये ज्ञानी। ज्ञानी या नौकार गणे न पंचमा ओमकार गणे, ये ध्यानी नहीं, तो रागी है बता। समझ में आया? पंच नौकार गणे नमो 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 लाख बार सब राग है। पर तरफ का वर्ण सब राग है। वो तो बहुत आते तुम्हारे सारण स्वामी बहुत कहते हैं। सारण स्वामी तो ત્યાં भी कहते हैं कि लोगों रंजन करवा माटे, लोक रंजन माटे तुम जो उपदेश देते हैं राग से लाभ होता नहीं, ऐसा लोक रंजन मरी ने नरक में जाएगा। जन रंजन आते हैं ना, खबर है? अपने आते हैं अष्टभाव में कुमकुंदाचर का है।
जन रंजन करने को दुनिया राजी रहे ऐसी उपदेश देना मरी जाए मर के निगोद मर जाए। वितराग मार्ग जो है ऐसी बात तो खबर नहीं तेरे અને दुनिया राजी हो गए ऐसा करो भैया ऐसा करो व्यवहार करो देश सेवा करो दयादान करो पूजा करो तुम्हारा धर्म होगा है उसमें अज्ञान की प्रसिद्धि होती है। आई तो ऐसी बात है भैया आई गुपत बात रखते नहीं आचार। ये योगी ये ज्ञानी तुम उस आत्मा को देखो आत्मा दिखे जन्म जानने में आता है। वितराग निर्विकल्प सौम्यन ज्ञान की भावना से उत्पन्न परमानंद सुख रस के आस्वाद से जान। इतनी व्याख्या की है। क्या कहते हैं कि ये भगवान आत्मा को वितराग निर्विकल्प राग रहित अंदर विकल्प रहित वितरागी परिणति पर्याय द्वारा निर्विकल्प अभेद स्वसंवेदन ज्ञान अपना आत्मा का अनुभव का ज्ञान ऐसी भावना से उत्पन्न परमानंद सुख रस का आस्वाद आया अंदर। अतीन्द्रिय परमानंद रसना सुखना स्वाद से जान क्या आत्मा है। कुसुम भाई गजब बात करे भगवान तेरी बड़ाई बड़ी है भाई। तुम जानने में तो परम आनंद का रस से जानने में तुम आता है। ये विकल्प दयादान व्रत व्यवहार शुद्ध व्यवहार ज्ञान शास्त्र का कि पंचमा और परिणाम उससे ही जानने में नहीं आता हूं तो विकार है। समझ में आया है कि नहीं? अंदर लखन अभी का है यहाँ तो पहले का है। अभी 1000 परमात्म प्रकाश भेज गया यहाँ 1000 में। भगवान तुम जानने में कैसे आते हैं? तुम भगवान तरीके बुलाते हो शिष्य को। भोग नाम आनंद ने ज्ञान की लक्ष्मी वान। भगवान प्रभु एम कहते हैं मूर्ति का भगवान आत्मा एनी मां झूला में झूलाने को मारा दीकरा डाया है पात्र में डायम के एक वखान करते स्वर कर ग्यार दिशो नहीं सुवाई ध्यान रखो तुम्हारा रोया सुजा नहीं हुए। मारो दीकरो डायो से अपने कैसे हुए तुम्हारी हिंदी में कहीं से शाणा है पाटले बेसी नया है मामा ने गिरे गया ऐसे आती बात वखान करते हैं तो वो लोग सूझ जाते हैं। तृण लोक नाना जगत ने जाए जागता करने को भगवान करके जगाते हैं। जाग रे जागना तेरे सुना हवे न पालवे। एनी मां वखान करके सुनाते हैं आया भगवान आत्मा जिसमें पुण्य पाप का विकल्प भी नहीं ऐसी चीज तेरी है प्रभु। तेरी तने कीमत नहीं नाथ ने ते पर की कीमत करने में रुक गया। समझ में आया? या तो भगवान त्रिलोक ना नाथ हम कहते हो भगवान आत्मा प्रभु तुम जागने नाथ। ए राग से न विकल्प से तेरी जागृति नहीं होगी नाथ। ते ऐसा नमाला तुम नहीं कि तेरे राग का आश्रय लेना पड़े। सुन भाई सुमन नाम फूलड़ा नु नाम हो। आनंद का फूल चढ़ाए प्रभु तो आनंद में जानने में आएगा। दक्षिणवाद बापा क्या कहते हैं कि निर्विकल्प संवेदन ज्ञान की भावना एकाग्रता। ज्ञान का सागर प्रभु आनंद का समुद्र प्रभु
वो तरफ की वितरागी पर्याय राग रहित निर्विकल्प पर्याय द्वारा भावना से उत्पन्न क्या हुआ? परमानंद उत्पन्न हुआ उसमें। अतीन्द्रिय परमानंद। विषय ना आनंद तो जय है। भोगना विकल्प में भोग जो राग मजा दिखते हैं इस शरीर की नहीं, शरीर तो छूते ही नहीं, शरीर का शरीर आत्मा छूते ही नहीं, उसका शरीर को छूते नहीं। फक्त वो लक्ष्य करके ठीक लगते मने ऐसी मान्यता उगी होती है, उसमें राग आता है, राग का स्वाद लेते हैं। स्त्री का शरीर ना नहीं, आत्मा का आनंद ना नहीं। समझ में आया? ये मांस, हाड़का, चामड़ा, धूड़ एना स्वाद कैसे आए है? पर वो तरफ का लक्ष्य करके राग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये राग का स्वाद करते हैं, जहर का। उससे भोग लिया है, मजा पड़ी है, मगीना नहीं मानते हैं। प्रभु तेरी चीज तो देख, तेरा स्वभाव सन्मुख होने से तने उत्पन्न परमानंद सुख होगा। परमानंद अतीन्द्रिय शांति संकित दर्शन में ऐसा सुख रस से स्वादवान से सुख रस के आस्वादन से जान, एनाथी आत्मा जान। समझ में आया? तो दिगंबर संतोनी वाणी वितरागनी वाणी है। बापू ये वाणी समझना घनी पुरुषार्थनी जागृति जो है भाई, ठीक है, साधारण मिले ये चीज नहीं है। क्या कहते हैं? उसका अर्थ क्या? नान बलेण, चौथा पद नहीं चलना, ज्ञान बलेण ની व्याख्या किया। ज्ञान बल वड़ी जान आत्मा को, उसका अर्थ ये निर्विकल्प परमानंद सुखना आस्वादन से तुम जान के आत्मा है। जिसमें से परमानंद निकला, ये आनंद का स्वाद से जान के आत्मा एकला परमानंद का पुंज है। ऐसे जान उसको ज्ञान कहने में आता है, ना उसको सम्यक दृष्टि कहने में आता है। सच्चा सम्यक दृष्टि ये है। तन्मय होकर देखो, आस्वादन जान क्या क्या? अपना परमानंद सुख रस के आस्वादन से तन्मय होकर अनुभव कर। स्वसंवेदन ज्ञान आप कर अपने को अनुभव करना, ये सार है। ये सारा सिद्धांत का 12 अंक का सारा है। स्वसंवेदन ज्ञान आप कर अपने को अनुभव, स्वसंवेदन है, स्वना अपने, स्वसंवेदन आप कर अपने को अनुभव करना, ये सार है। ऐसा उपदेश श्री योगींद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को दिया, अपना शिष्य का उपदेश दिया, प्रभु तुम आकर हो। ऐसा न किया तुम वर्तपाल ने ऐसा क्यों नहीं करी, तो फिर विकल्प है, राग है। परमानंद सुख प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का डिम, वो रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला नहीं होता है, क्या कहते हैं, दूध का, हम आनंद का रसगुल्ला है आत्मा। केम बैठे बैठे छूट क्यों नहीं, तो जन्म मरण नहीं मिटेगा 3 काल में। समझ में आया? ये योगींद्र प्रभाव 103 हुआ, 104 के। તો એ રીતે ગાથા 103 નો વિસ્તાર પૂરો થયો। सुखधाम अनंत सुसंत चली दिन रात रहे तद ज्ञान मणि प्रकांति अनंत सुधामय
ते